हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, 19 अप्रैल 2022 को एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एमसी की तरफ से आया है और वो नोटिफिकेशन है निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है निधि कंपनीज के लिए, बिकॉज इस नोटिफिकेशन के थ्रू काफी रूल्स में कुछ नया प्रोविजंस इंसर्ट हुए हैं और कुछ रूल्स तो पूरे के पूरे रिप्लेस हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके लिए एक छोटा सा राइटअप है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 6 to 7 पेजेस का है और डिटेल में है काफी। और see this notification, this came on the 19th of April 2022, and these rules may be called as Nidhi Amendment Rules 2022. They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. तो ये नोटिफिकेशन के लिए जो एक राइटअप है, इस राइटअप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस निधि अमेंडमेंट रूल्स में क्या इंपॉर्टेंट और मेजर चेंजेस हैं। इन रूल 3A, फर्स्ट जो अमेंडमेंट है इन रूल 3A, in rule 3A, three more provisions shall be inserted in rule 3A of the said rules after the third proviso. The following provisos shall be inserted, namely, provided that also that no company which has not complied with the requirements of this rule or fails to comply with such requirement on or after the commencement of the Nidhi Amendment Rules 122, or in case the application submitted by the company in form NDH4 is or has been rejected by the central government shall raise any deposit from its members or provide any loan to its members. फ्रेंड्स, अगर 3A का जो ये प्रोविजो है, अगर ये कंप्लाई विद नहीं किया है तो the company shall not raise any deposits from its member or provide any loan to its members under the provision of these rules. इसके बाद जो प्रोविजो इंसर्टेड है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ any deposit raised by the company after the date of non-compliance or the date of commencement of the above said rules or the date of rejection of the application in form NDH4, whichever is later as referred to in the fourth proviso that is above, shall be deemed to have been raised in pursuance of chapter 5th of the act. फ्रेंड्स, अगर NDH4 का आपका अप्रूवल नहीं होता है या रिजेक्ट होने के बाद भी अगर आप मेंबर से डिपॉजिट लेते हो या फिर लोन लेते हो मेंबर से या मेंबर्स को लोन देते हो, तो ये डिपॉजिट या फिर लोन माना जाएगा चैप्टर 5th के अकॉर्डिंग। चैप्टर 5th मींस रूल ऑफ डिपॉजिट्स एंड शैल बी सब्जेक्ट टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स अंडर दैट चैप्टर और अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर। Provided also that nothing in this rule shall apply to a company incorporated as Nidhi on or after the commencement of the above said rules. Insertion of new section, that is rule 3B. Friends, 3B rule यहाँ पे insert हुआ है, that is for the public company. The public company desirous to be declared as a Nidhi company shall apply in form NDH4 within a period of 120 days of its incorporation for declaration as a Nidhi, if it fulfills the following conditions. फ्रेंड्स, निधि जो एक पब्लिक कंपनी होती है, अगर उसका डिक्लेरेशन आपको चाहिए कि निधि कंपनी का डिक्लेरेशन NDH4 में फाइल करना, तो 120 डेज के अंदर आपको फाइल करना। इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस एंड द टू कंडीशंस आर इट हैज नॉट लेस देन एटलीस्ट 200 मेंबर्स of Nidhi company and it has net own fund of 20 lakh rupees or more. मिनिमम 20 लाख का नेट ओन फंड्स चाहिए NOF. And the second point is the company shall also attach along with form NDH4, जो पब्लिक कंपनी NDH4 फाइल करेगी इन 120 days, उसके साथ साथ NDH4 के एक अटैचमेंट और करना है, and that is the declaration with regard to fulfillment of fit and proper person criteria as per the sub rule by all the promoters and directors of the company. फॉर्म NDH4 के साथ एक डिक्लेरेशन जाएगा पब्लिक कंपनी के लिए for the purpose of determining as to whether any promoter or director is a fit and proper person, the following shall be taken into account. किसी भी डायरेक्टर या प्रोमोटर को फिट किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया है। कुछ पॉइंट्स उसके लिए: इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, रेपुटेशन, फेयरनेस एंड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। बी, द पर्सन नॉट इनकरिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशंस। कुछ पॉइंट्स है डिस्क्वालिफिकेशन, ये किसी भी डायरेक्टर या पर्सन में नहीं होना चाहिए: क्रिमिनल कंप्लेंट, चार्जशीट, any order of restraint or prohibition, any order of conviction, such person has been declared insolvent, such person has been found to be unsound mind, such person has been categorized as a willful defaulter, fugitive in economic offender, such person is a director in 5 or more companies. Friends, this point is important. Such person means director or promoter
in 5 or more companies incorporated or declared as a nidhi, or is a promoter of 3 or more companies incorporated or declared as a nidhi. अगर कोई भी डायरेक्टर किसी 5 या 5 से ज्यादा कंपनीज में, निधि कंपनीज में डायरेक्टर है तो वो नहीं बन सकता, या प्रोमोटर 3 या 3 से ज्यादा कंपनीज के अंदर है। ये कुछ 9 क्लोजेस है। और उसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन फाइल इन फॉर्म एनडीएच 4। जो भी पब्लिक कंपनीज एनडीएच 4 फाइल करती है उसको 45 डेज के अंदर एग्जामिन करेगी central government. The central government shall examine the application filed in form NDH4 and convey its decision within a period of 45 days to the company, provided that in case a decision on an application filed in form NDH4 is not taken by the central government within the aforesaid period of receipt of such application, the same shall be deemed as an approved. अगर 45 days के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो deemed as an approved माना जाएगा form NDH4. On being satisfied that the company meets the requirement, the central government shall notify in the official gazette declaring it as a needy company or in mutual benefit society. Provided the decision of the central government approving the application filed by the company with the registrar along with form INC 20A required under section 10A of the act. फ्रेंड्स, अगर NDH4 का आपका अप्रूवल आता है और वो अप्रूवल आपको फॉर्म INC 20A में फाइल करना जरूरी है, provided further that such company shall commence its business only once the decision of the central government approving its application is obtained from the central government. फ्रेंड्स, अगर निधि कंपनी का, जैसे हम प्राइवेट कंपनीज में INC 20A फाइल करते हैं, वैसे निधि कंपनी भी जब तक INC 20A फाइल नहीं करेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी ओनली, तो जब तक INC 20A फाइल नहीं करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, तब तक वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। In case a company does not comply with the requirement of sub-rule 1 of this rule, it shall not be allowed to file form SS7 and pass 3. SS7 और pass 3 आपके फॉर्म फाइल नहीं होंगे जब तक NDH4 का अप्रूवल नहीं आता है, और वो NDH4 का अप्रूवल आने के बाद में आप INC 20A में फाइल नहीं करते। The provisions of this rule shall not be applicable to a public company incorporated under the act before the date of commencement of Nidhi Amendment Rules of 22. फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आने के बाद में अगर कोई भी पब्लिक कंपनी बनती है उस पे ये रूल्स एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है। चेंज इन रूल 4(1) फॉर द वर्ड्स 5 लाख रुपीस द वर्ड 10 लाख रुपीस शैल बी सब्स्टिट्यूट। इट मींस नाउ द मिनिमम पेड अप कैपिटल लिमिट हैज इंक्रीज्ड टू 10 लाख रुपीस। द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided every nidhi existing as on the date of commencement of nidhi amendment rules shall comply with this requirement within a period of 18 months. फ्रेंड्स, ये जो लिमिट है वो लिमिट सबसे पहले 5 लाख थी, उसको इंक्रीज करके रूल 4(1) में 10 लाख रुपीस कर दिया, और सब निधि कंपनीज को 18 मंथ्स के अंदर अंदर ये जो रूल है 10 लाख का, ये कंप्लाई विद करना हो। चेंज इन रूल 6 फॉर क्लोज डी दी फॉलोइंग क्लोज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली नो निधि शैल एक्वायर और परचेस। फ्रेंड्स, एक क्लोज है रूल 6 के अंदर डी नंबर, वहां से passing of special resolution and approval of RT is removed from rule 6। तो इसका मतलब ये है कि अप्रूवल पास नहीं कर सकते, पहले अप्रूवल के साथ आप एक्विजिशन या सिक्योरिटीज परचेस कर सकते थे, लेकिन वो अब नहीं कर सकते। एंड आफ्टर क्लोज किया, दैट इज द लास्ट क्लोज, द फॉलोइंग क्लोज shall be inserted, namely raise loans from banks or financial institutions or any other source for the purpose of advancing loans to members of the NIDI। तो कोई भी निधि कंपनी लोन्स रेज नहीं कर सकती किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग लोन्स टू द मेंबर्स ऑफ निधि कंपनी। इंसर्शन ऑफ न्यू क्लोज इन रूल 8। रूल 8 में भी एक नया क्लोज इंसर्ट हुआ है। इन रूल 8 ऑफ द सेड रूल्स आफ्टर रूल 3 the following sub rules shall be inserted. A member shall not transfer more than 50% of his shareholding during the subsistence of such loan or deposit as the case may be, provided that the member shall retain the minimum number of shares required under sub rule 3 of rule 7। यहाँ rule 7 आपको रीड करना है, उसके अंदर कुछ लिमिट्स हैं और मिनिमम जो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए वो आपको कंप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उस रूल्स को रीड करने के साथ साथ आप अमेंडमेंट्स रीड करोगे तो आपको समझने में इजी होगा। एंड रूल 9, चेंजेस इन रूल 9 फॉर द वर्ड 10 lakh द वर्ड 20 lakh shall be substituted, provided that every nidhi existing as on the date of commencement of nidhi amendment rules shall comply with the requirement within a period of 18 months from the date of such commencement। फ्रेंड्स, रूल 9 क्या है? रूल 9 में आपको बता देता हूँ। रूल 9 इज फॉर नेट ओन फंड्स। रूल 9 में ये लिखा गया था, एवरी निधि शैल मेंटेन नेट ऑन फंड्स of not less than 10 lakh rupees or such higher amount as the central government
may specify from time to time. फ्रेंड्स 10 लाख का एक रूल था जिसको यहाँ पे बढ़ा के 20 लाख रुपीस हो गया और वो 18 मंथ्स के अंदर हर कंपनी को फॉलो अप करना। चेंजेस इन रूल 10 for sub rule 6 the following sub rule shall be substituted, namely a nidhi shall not close any branch, कोई भी ब्रांचेस है अगर निधि कंपनी की अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस वो तब तक क्लोज नहीं कर सकती अनलेस द प्रपोजल टू क्लोज द ब्रांच अलोंग विद द प्लान एज टू हाउ द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैव बीन और शैल बीन पेड ऑफ एंड हाउ द एग्जिस्टिंग लोन शैल बी रिकवर्ड इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एट द मीटिंग। तो फ्रेंड्स इस तरह से डायरेक्ट कभी भी कोई भी निधि कंपनी की जो ब्रांच है वो क्लोज नहीं हो सकती जब तक बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल नहीं होता है। इट हैज obtained the prior approval of the regional director by applying in form NDH2। फ्रेंड्स NDH2 का मल्टीपर्पज फॉर्म होने वाला है, नीचे चेंजेस बताए गए हैं अमेंडमेंट एक्ट में भी, along with the fees at least 60 days prior to such closure, provided that the RD shall consider such application and pass orders within a period of 30 days of receipt of such application। RD 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर देगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द RD द निधि शैल पब्लिश न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एज पर फॉर्मेट NDH5। NDH5 एक ड्राफ्ट है जो आपके साथ अभी शेयर करूंगा एट द एंड। इन ए न्यूज़पेपर इन ए वर्नाकुलर लैंग्वेज इन द प्लेस वेयर इट कैरीज ऑन द बिजनेस एट लीस्ट 30 डेज प्रायर टू सच क्लोजर। क्लोजर के 30 डेज के पहले पहले आपको NDH5 में वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देना है। फ्रेंड्स ये एडवर्टाइजमेंट किस लिए है? पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए। And fixes a copy of such advertisement or a notice informing such closure of the branch on the notice board of the Nidhi as well as the relevant branch for a period of at least 30 days from the date on such advertisement was published। And friends काफी basic points इसके साथ साथ यहाँ पे explain किया है। Any place not being a registered office or a branch where a Nidhi carries on its operation shall be closed within a period of 6 months from date of commencement and intimation shall be sent to the registrar in this regard in form NDH2। अगर कोई भी ब्रांच क्लोज होती है निधि कंपनी की तो वो NDH2 में फाइल करके आपको रजिस्ट्रार को बताना मैंडेटरी है। चेंजेस इन रूल 18 ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे एक रूल सब्स्टिट्यूट हुआ है। निधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक्सीडिंग 25%। और निधि का जो रूल था आई थिंक उस टाइम पे जो अगर डिविडेंड की हम डिस्कशन करें तो डिविडेंड के लिए कुछ कंडीशंस थी that an equal amount is transferred to general reserve, there has been no default in the repayment of deposits, it has to be complied with the all rules। ये सब जो है उसमें चेंजेस आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो चुका है। निधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% इन ए फाइनेंशियल ईयर। और फ्रेंड्स जो NDH5 का एडवर्टाइजमेंट का ड्राफ्ट था वो आपके साथ में शेयर किया है यहाँ पे। फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू बी गिवन व्हाइल क्लोजिंग द ब्रांच ऑफ ए निधि कंपनी अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस pursuant to sub rule 6 of rule 10 of the Nidhi rules 2014। फ्रेंड्स इस तरीके का ड्राफ्ट आपको एज एन ब्रांच या निधि कंपनी के एज एन डायरेक्टर आपको यहाँ सबमिट करना है। और इसके साथ साथ जो मेजर अमेंडमेंट्स थे या मेजर चेंजेस थे वो आपको क्विकली आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक एक पॉइंट जो है वो फ्रूटफुल होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो निधि कंपनीज के डायरेक्टर हैं और काफी सारी निधि कंपनीज का क्लोजर का भी नोटिस अभी आ रखा है, राजस्थान में काफी कंपनीज क्लोज हुई है, दिल्ली हरियाणा में काफी निधि कंपनीज क्लोज हुई है, NDH4 अभी तक 2 साल या 3 साल से अप्रूवल नहीं हुआ है। तो उन निधि कंपनीज को टाइमली रूल्स कैसे फॉलो करना है कैसे नहीं करना और अमेंडमेंट्स जो है जो अभी 2022 में अमेंडमेंट आया है 19 अप्रैल को वो सब भी आपको फॉलो अप करना होगा क्योंकि निधि कंपनीज की जो कंप्लायंस है वो काफी स्ट्रिंजेंट है और उसमें मनी का जो एक फंड्स का मेंबर्स से फंड्स रिसीव होता है, मेंबर्स को लोन देते हैं या गोल्ड लोन देते हैं तो इसके लिए उसकी जो कंप्लायंस है काफी स्ट्रिंजेंट है बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व इन द निधि कंपनी बाय द मेंबर्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है हमारी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है तो हमारे वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।